Good evening, all of you, and welcome to yet another session of non-integral accounting. In yesterday's session, we discussed about the theoretical aspect. Today, we will solve one question to understand this in a much better way. So, let us say you are given a trial balance of X Limited with four components: stores ledger control account, work in progress control account, finished goods control account. बेसिकली ये तीनों स्टॉक है, तो इसमें डेबिट बैलेंस होते हैं. दीज आर आवर ओपनिंग बैलेंसेस. एंड कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इज नथिंग बट the general ledger adjustment account that we spoke about. So, dear friends, we have to understand a very basic simple concept that cost ledger control account is the other name for general ledger adjustment account. So, since this is given to us, we will be preparing these ledger accounts along with factory overheads, office and administration overheads, selling and distribution overheads. You will have your cost of sales and costing profit and loss account. So कुल मिलाकर हम लोग 10 लेजर अकाउंट बनाने वाले हैं. 4 आपके सामने हैं और 6 मैंने जिसे नाम लिया. इसका सीक्वेंस क्या रहेगा? इनफैक्ट और दो तुमको आएगा, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट वेजेस तो पक्का आएगा. तो 11 लेजर अकाउंट आएंगे. सीक्वेंस क्या रहेगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रॉ मटेरियल से तो पहला आएगा, फिर डायरेक्ट वेजेस आएगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आएगा, एंड देन वी विल हैव वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस इज वर्क्स कॉस्ट. सिंपल याद रखना, कॉस्ट शीट का वर्क्स कॉस्ट. फिर आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. फिर तुम्हारा आएगा फिनिश गुड्स, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. फिर आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. देन यू विल हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स. देन यू विल हैव सेल्स, एंड देन फाइनली वी विल प्रोसीड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड लास्ट में हम लोग बनाएंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. फॉर्मेट सिंपल रहेगा, रेगुलर लेजर अकाउंट पर्टिकुलर्स रुपीस. टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम हमने ऑलरेडी उसका फॉर्मेट बना लिया है. सो कुछ इस प्रकार से आपके सामने वो लेजर अकाउंट्स दिखाई देंगे. So in the books of X Limited, if I say, because we are given the company's name, so in the books of X Limited हम लोग बनाएंगे stores ledger control account, direct wages control account. Then as I talk to you, direct expenses control account यहाँ पर अभी नहीं है, आप नहीं बनाओगे तो भी that is fine. तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. देन you will have office and administration overheads control account, finished goods control account, selling and distribution overheads control account, cost of sales account. Then you have the sales account, costing profit and loss account, and general ledger adjustment account. So 11 ledger accounts हम लोग बनाएंगे. Let us start. Opening balance stores ledger का 35,000 दिया है. I please be with me, and if I miss out anything, do let me know, because it's an opening stock. Debit balance रहेगा, to balance brought forward stores ledger में 35,000. Likewise, work in progress shows 38,000. So work in progress control account में हम लोग लिखेंगे to balance brought forward 38,000. नेक्स्ट आइटम फिनिश गुड्स में 25,000 है, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड अमाउंट विल बी 25,000. Thereafter, cost ledger control account, as I talk to you, is our general ledger adjustment account. इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड एंड अमाउंट इज 98,000. के मन में आता रहेगा, सर हमने अगर जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखा तो चलेगा क्या? क्वेश्चन में तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोला है. सो इट्स ओके इफ यू आर एबल टू अडैप्ट, इफ यू आर एबल टू राइट योर कॉस्ट लेजर, राइट कॉस्ट लेजर, आई डोंट माइंड दैट. बट इफ यू फील कि नहीं आई विल गेट कंफ्यूज्ड, माय जर्नल एंट्रीज विल ऑल गेट फंबल्ड, you can write general ledger adjustment account, and there is no harm, there is nothing wrong that you are doing. So let us try to revise. Journal entries are the base.
सो रॉ मटेरियल परचेस्ड, जब रॉ मटेरियल परचेज होगा तो हमने जर्नल एंट्री बोला है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, amount of goods purchased is 95,000. सो याद रखना जर्नल एंट्री है तो लेजर में दो जगह पे आएगा, स्टोर्स लेजर के डेबिट में आएगा और जनरल लेजर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज रुपीज 95,000. Yeah, anywhere that you feel you are not understanding, I am going a bit fast, please do let me know, I will wait for you. So shall I proceed further friends? ये समझा आप लोगों को? So, Yes, sir. अब दिया है अगला ट्रांजैक्शन, वो है रॉ मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स 3,000. तो जब हम लोग सप्लायर्स को देते हैं यानी क्रेडिटर्स को हम लोग रिटर्न करते हैं, सो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. दिस इज वेरी सिंपल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय जनरल लेजर adjustment account and the value will be obviously rupees 3,000. Simple एकदम. It says raw material issued to production 98,000. So when raw materials is issued to production means हम लोग फैक्ट्री को दे रहे हैं, तब एंट्री आता है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड to stores ledger control account and its value is given as 98,000. तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट and its value is given as 98,000. रॉ मटेरियल्स में 14 दिया है, रिटर्न टू स्टोर्स 3,000. तो हमने जो फैक्ट्री को भेजा था उसमें से 3,000 का माल वापिस आ गया, तो हम बोलेंगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट विल बी रुपीज 3,000. एंड वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट and the value will be rupees 3,000. बोलो चारों जर्नल एंट्री और उसका लेजर पोस्टिंग क्या है, कैसा है, समझा आप लोगों को? जर्नल एंट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है. या गंगेश गो अहेड. तो कल मैंने लिखा के दिया था, ओरल डिस्कशन किया था यहाँ पर. दैट इज वेयर यू हैव टू ग्रो एज ए स्टूडेंट. हम जब परचेज करते हैं तो बोलते हैं स्टोर्स लेजर कंट्रोल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट. तो अगर हम सप्लायर को वापस करेंगे तो एंट्री घूम जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. इट विल बिकम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. यू कैन नोट डाउन. हाँ, परचेज रिटर्न ऑफ कोर्स. यस. एनीबडी एल्स? If you understand, you have to share that. Understood? Say a thumbs up. I could see only Jayashi's message. If you are there in the room online, you have to participate. Just log in करके रहने से काम नहीं चलता. Yeah, fine. Still only Nikita gave a thumbs up. प्रोडक्टिव वेजेस. नाउ दिस सिंपल मीन्स प्रोडक्टिव वेजेस जो हमारा हुआ है वो हमारा खर्चा हुआ है. तो प्रोडक्टिव वेजेस 40,000. हम बोलेंगे डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 40,000.
और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट. We all know the amount is 40,000. कॉस्टिंग का थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग सब लोगों को ज़रूर होना चाहिए, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली बिकॉज many of them are confused by the simple statement that I am going to pass, and that is indirect wages. I repeat, indirect wages are factory overheads. I repeat, indirect wages are factory overheads. So dear friends, बहुत सारे जनों को ये बात मालूम नहीं रहता है तो गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ. Indirect wages are factory overheads that doesn't come under direct wages. सो नेक्स्ट वाला इनडायरेक्ट वेजेस 25,000 दिया है, तो हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. क्या जनरल एंट्री आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 25,000. और जनरल लेजर एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय factory overheads control account. This is indirect wages. Remember. नेक्स्ट आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड 50,000. ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स इसके अलावा और 50,000 खर्चा हुआ, जर्नल एंट्री विल रिमेन द सेम. सो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, and amount as we speak is 50,000. जनरल लेजर एडजस्टमेंट में फिर से आएगा, दो बार आया तो क्या हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कोई बोलेगा सर क्या मैं कंबाइन करूं क्या? एट दिस स्टेज आई वुड से नो. इफ यू आर वेरी क्लेवर, इफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली, so combine is a easier option. But if you are not clear, you are still learning, you must definitely wait for things, and only then you have to take your call. नहीं तो नहीं करते. आई होप आई एम क्लियर विद दैट. फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 40,000. सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. अमाउंट इज 40,000. और जनरल लेजर एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. कुछ नहीं दिया है मतलब इट इज पेड. आई रिपीट, कुछ नहीं दिया है यानी इट इज पेड, तो मैं पेड का एंट्री पास कर रहा हूँ. बोलो कंफर्टेबल टिल हियर, अंडरस्टूड द पार्ट? अनप्रोडक्टिव वेजेस एक्चुअली लॉस है. अनप्रोडक्टिव वेजेस इज लॉस. सो देखो, डाउट्स पूछना अच्छा है, लेकिन इस वक्त डाउट पूछना तुम्हारे लिए कभी कभी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम डेज. सो अनप्रोडक्टिव वेजेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर आप फाइनल अकाउंट्स में सोचोगे तो यू राइट इट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बिकॉज इट इज ए लॉस. अनप्रोडक्टिव है वो. तो वैसे तो आपको कॉस्ट शीट में उसका रेफरेंस आता ही नहीं. इट्स ए फाइनेंशियल लॉस. ठीक है, हाँ. तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रोडक्टिव वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिया. अब क्या बोलता है सेंटेंस देखो, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू द वेयर हाउस. नाउ दिस इज अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट. आप बोलोगे है क्या चीज सर ये? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस? कैन एनीबडी फ्रॉम हियर गेस व्हाट इट दिस कैन बी?
cost of finished goods transferred to warehouse. ये क्या हो सकता है? तो अगर तुम बोल रहे हो, अगर वो है तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? दैट इज नॉट कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है. सो यहाँ पर दिस इज क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, that is finished goods control account debited to your work in progress control account. That is what is called as cost of production. Okay. तो वो वर्ड्स थोड़े ट्रिकी वर्ड्स होते हैं, यू हैव टू लर्न दिस, पढ़ पढ़ के ही आने वाला है. तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 2,13,000 एंड वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा बाय स्टोर्स, सॉरी, बाय finished goods control account and the value will be 2,13,000. Now I know majority of you might be disturbed, सर ये तो सिखाया ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं. ये होना स्वाभाविक है, होता है हर स्टूडेंट जो पहली बार नॉन इंटीग्रल सीखता है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाना, सीख रहे हो आराम से सीख के लो, लर्न इट स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, इट्स फाइन, यू आर लर्निंग, तो वर्ड्स याद रखो. एंड एज आई टॉक टू यू, अगला आइटम आपको याद रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. 2,10,000 अगर यहाँ पर दिया है, सो इट इज नथिंग बट यू आर क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट and transferring it to cost of sales. Journal entry will be cost of sales account debited to finished goods control account. And amount is 2,10,000. दो वर्ड्स थोड़े खतरनाक है, जहाँ पर यू हैव टू बी बिट केयरफुल. रीड इट, एक बार दिमाग में बिठा लो. तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. नॉट नेसेसरी कि तुम लोगों को इतना टफ लैंग्वेज दे, बट मैं तुम लोगों को जानबूझ के डिफिकल्ट सिखा रहा हूँ, सो दैट इजी आया तो यू आर एबल टू मैनेज इट विदाउट ए प्रॉब्लम. देन वी हैव सेल्स 3 लाख. सेल्स 3 लाख दिया हुआ है, तो सेल्स दिया है तो क्या आएगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. वैल्यू इज गिवन एज 3 lakhs. तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट and the value as we know is 3 lakhs. लास्ट में दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 10,000. So selling and distribution overheads account debited to general ledger adjustment account. Amount is rupees 10,000. So general ledger adjustment के क्रेडिट साइड में आएगा बाय selling and distribution overheads control account. 10,000. So far so good for everyone. जर्नल एंट्रीज जो अपन ने कल सीखा था वही हम लोगों को करना है. आगे बढ़े. ग्रेट. Factory overheads are applied to production at 150% of direct wages. Any under or over absorption overheads being carried forward to the adjustment months. So factory overheads के बारे में इन लोग बोलते हैं that factory overheads are absorbed. Factory overheads are absorbed at 150% of direct wages. So what was our direct wages? If you remember, our direct wages was 40,000. So 40,000 का अगर मैं 150% कैलकुलेट करूँ, तो
that would give me 60,000 rupees. So that is factory overheads absorbed in costing, है वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्टिंग। ठीक है, समझने की कोशिश करो। 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और बोलता है इसके ऊपर जो भी बचेगा कम या ज्यादा उसको आप आगे लेके जाओ, ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, हम लोग करेंगे। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, फैक्ट्री ओवरहेड्स जब एब्जॉर्ब होता है तो कहाँ जाता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस को जाता है। तो एंट्री बनता है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, and they have given that this amount is 60,000। तो हम लोग लिखेंगे by factory overhead, sorry, by work in progress control account। समझा क्या? इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड रिकवर्ड आर द सेम। तो एडमिनिस्ट्रेटिव को प्रॉब्लम नहीं है, जितना 40,000 खर्चा किया है उतना ही एब्जॉर्ब हुआ, यानी बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डायरेक्ट काम खत्म, एब्जॉर्ब उतना ही करना है जितना खर्चा हुआ, तो वही 40,000 ही रहेगा। तो फिनिश गुड्स के डेबिट साइड में आएगा टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट इज 40,000। शो द नेसेसरी कॉस्ट लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब हमारा काम हो गया, एक एक करके देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखेंगे तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में दोस्तों याद रखना अभी कुछ बेसिक अकाउंट्स का बात है, जहां ओपनिंग बैलेंस आया उस अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस आएगा, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इधर आएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, तो डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा, ये 120 31 133 टोटल दिख रहा है मुझे। 1,33,000 माइनस 1,01,000, so I think the answer will be 32,000। If anybody can confirm this, it would be great। This is our balancing figure। Yeah, डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट में भी सब में बैलेंस नहीं आएगा, याद रखना बैलेंस सिर्फ स्टॉक का आता है, स्टोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, बाकी खर्चे आगे जाने वाले। तो डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा, तो इट विल गो इन वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट में जाएगा 40,000। तो ये टैली हो जाएगा बाय 40,000। वर्किंग, कोई भी चीज को ना टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लेना कि मेरे को याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे आप। तो डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल अकाउंट उधर लिखा तो यहाँ डेबिट में लिख देने का, कितना था वो 40,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स का स्टोरी आपको याद होगा दोस्तों, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में बोला था 150%, बाकी जो बचता है इट इज टू बी कैरीड फॉरवर्ड। तो 75,000 टोटल दिख रहा है डेबिट का, और क्रेडिट में 60,000 ही है। इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्ब। हमने खर्चा किया है 75,000, लेकिन एब्जॉर्ब हुआ है सिर्फ 60,000, तो बचा है और 15,000। सो बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमको आंसर आएगा 15,000। मैं मेरे लिए इसको हाईलाइटर कर दूँ। वर्क इन प्रोग्रेस वापस याद रखने का मैंने बोला, वर्क इन प्रोग्रेस में भी स्टॉक दिया लास्ट में आएगा, इसीलिए इसमें भी बचेगा, वो है बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 38 प्लस 98 120 136 प्लस 1 लाख, so it should be 2,36,000। 2,36,000 माइनस 2,16,000 करेंगे हम लोग, सो आंसर आएगा 20,000।
It will be always nice if somebody confirms it every time because it has to be done that way only. 20,000 आ रहा है, कोई कंफर्म कर रहा है? या Yes, sir. 40,000 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनकर्ड एंड एब्जॉर्ब सेम आ गया। फिनिश गुड्स में भी हम लोगों को बोला गया है स्टॉक है मतलब बैलेंस है। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 और 2,13,000, 2,38,000 होता है, प्लस 40,000, सो दैट इज 2,78,000 एंड 2,78,000 माइनस 2,10,000 करेंगे हम लोग, सो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, यस दैट विल बी 68,000। मैं बैलेंसेस को हमेशा हाईलाइट करके रख रहा हूँ सो दैट अपने को बाद में ट्रायल बैलेंस बनाने को काम में आए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकर्ड दिया है हम लोगों को, तो दिस विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, अमाउंट विल बी रुपीज 10,000। ठीक है, दोस्तों सिंपल है। तो टोटल 10,000, खर्चा अगले हेडिंग को एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ सेलिंग में आएगा टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स अकाउंट, अमाउंट इज 10,000। सो मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 2,20,000, विच विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर होगा? टोटल अमाउंट 2,20,000। कहाँ से आया 2,20,000? टोटल है, बाकी कुछ बड़ा बात नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, अमाउंट इज 2,20,000, और सेल्स अकाउंट के डेबिट में आई विल ट्रांसफर इट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इज 3 lakhs। कॉस्टिंग P&L के क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 3 lakhs। ऑब्वियसली मुझे 80,000 का फायदा हुआ, विच विल बी ट्रांसफर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज 80,000। एज यू ऑल कैन सी, 3 लाख में से अगर मैं माइनस करूँ 2,20,000 तो मुझे 80,000 मिलेगा। सो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय costing profit and loss account, 80,000. Now this is no big surprise that in general ledger adjustment account the total of credit side will be more. ठीक है, तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होगा। जरा एक बार टोटल कैलकुलेट करने में मदद करो। 98,000 प्लस 95,000 प्लस 40,000, या थैंक यू, प्लस 25,000 प्लस 50,000 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 80, 4,38,000 माइनस 3,03,000 करेंगे हम लोग, तो लास्ट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड एंड आंसर विल बी 1,35,000, right? Now what we have done for the last half an hour, is it right, is it wrong, how to know that? So what we do is we prepare trial balance of the firm after these accounting entries. How do you prepare a trial balance? It's simple. 3 columns that we prepare. The first column is particulars, debit rupees and credit rupees. So there are hardly a few items which will come. क्या क्या आएगा? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, याद रखने का
भले ही हम लोगों ने डेबिट में लिखा हो, सॉरी क्रेडिट में लिखा हो, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस इज ऑलवेज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड, यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पर डेबिट का टोटल ज्यादा था ना दोस्तों, तो ये जो 32,000 आया, इट इज अ डेबिट बैलेंस। सो मैं डेबिट के कॉलम में उसको लिखूंगा 32,000। फिर हम लोगों को याद होगा, तो उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स में 15,000 का बैलेंस मिला। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 15,000। इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस का हम लोगों को 20,000 मिला। सो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 20,000। फिर फिनिश गुड 68,000 मिला। फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट 68,000। और आखिर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने जो मेहनत किया दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पर तुम जब जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाते हो तो डोंट एक्सपेक्ट दैट इट शुड टैली। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टैली नहीं होता है, उसके बाद जो हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो टैली होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग सब करेक्ट लिखने के बाद भी रॉन्ग करके आते हैं, जस्ट बिकॉज जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट टैली नहीं हुआ बोलते हैं। वो टैली होगा ही नहीं, वो हम लोग टैली करने के लिए नहीं बैठे हैं। जनरल लेजर एडजस्टमेंट में बैलेंस आएगा और वो बैलेंस की वजह से बाकी का अमाउंट टैली होगा। सो दिस इज व्हाट इज योर नॉन इंटीग्रल accounting system. You can switch off the recording now and then we will discuss.